السلام علیکم. ویلکم ٹو دس اسپیشل پری بجٹ پروگرام جس میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کو کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا بجٹ جو اگلے سال کا آ رہا ہے جس میں بہت زیادہ دیر از اے لاٹ آف کنسرن کہ کتنا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے کیا واقعی فیز آؤٹ ہو جائے گا, کیا یوٹیلیٹی پرائسز بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی, کیا شوکت ترین صاحب اس کو ری فیس کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں. بٹ Dr. Pasha will try to we will ask him کہ کیا ہونا چاہیے, what is the ideal situation. Welcome to the show, Dr. Saab. I don't think I need to introduce you. You've held all the possible portfolios and so you have vast experience as well. So Dr. Saab, بتائیے گا کہ what do you think what would be the biggest challenge for شوکت ترین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو چیلنج حکومت کے سامنے ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال دیکھیے شرح نمو تقریباً 4% تک پہنچ گئی, تو ہم اب کوشش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہم ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائیں. اور انشاءاللہ جس طرح کل اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی نے مقرر کیا ہے کہ ہمارا اگلے سال کا شرح نمو تقریباً 4.8% ہوگا, تو یہ ایک مناسب اسٹریٹجی ہے. مگر ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ اگرچہ ہمارا ٹریڈ کا جو بیلنس ہے کرنٹ اکاؤنٹ وہ اب تو بہت ہم نے مینج کر لیا اس کو اللہ کے فضل سے, اب تو سرپلس میں ہے. جی ریمیٹنسز کی وجہ سے یقیناً. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کا اور ہمارے پروونشل حکومتوں کا, اگر آپ اس کو ملا کے دیکھیں تو حالات پچھلے 2-3 سال سے خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور جسے باٹم لائن کہتے ہیں کہ ہمارا قرضے کا بوجھ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے, 80% تک پہنچ جائے گا اس سال. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بجٹ ڈیفیسٹ کو نمایاں طور پر کم کرنا ہے, آئی ایم ایف نے تو یہ کہا ہے کہ آپ اس کو 7% سے جی ڈی پی کے گرا کر اس کو 5.5% پہ لے آئیں, یعنی کہ ایک سال میں 1.5% جی ڈی پی کا گرائیں, جو کہ ہم نے کبھی تاریخ میں حاصل نہیں کیا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بے شمار نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے, ٹیکس کا جال پھیلانا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے حکومت کے جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے خرچوں کو یقیناً کم کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا, اور ڈیولپمنٹ پروگرام کی سائز کو بڑھانے میں دقت ہوگی. تو یہ جو انہوں نے اناؤنس کر دیا ڈاکٹر صاحب کہ 900 بلین ہوگا. جی ماشاءاللہ 900 بلین اگر ہوتا ہے اور ہماری پروونشل حکومتوں کا 1 کھرب ہو جاتا ہے تو پھر یہ 1900 ارب کے قریب یہ اس سال کے جو لیول ہے اس سے کوئی 60 سے 70% اضافہ ہے. اس سال کا 650 بلین تھا جی فیڈرل گورنمنٹ کا, دونوں ملا لیں تو تقریباً 1200-1300 کے قریب ہوگا. تو آپ کو 1200 پہ اگر آپ لیں تو کافی 60 سے 70% اضافے کی ضرورت پڑتی ہے, جو کہ غیر ممکن سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, آئی جسٹ وانٹ ٹو رن دس بائی یو اینڈ یور کامنٹس آن دس. پچھلے سال اگر آپ کو پچھلے سال کے بجٹ میں, یعنی جو اب جو سال ہے جو ختم ہونے والا ہے, اس میں اگر آپ بجٹ کو دیکھیں, اینڈ آئی ہیو دا ڈاکیومنٹ ہیئر, اس میں ایک بہت ہی میجر جو ہمیں بینیفٹ ہوا تھا, بینیفٹ کہہ لیں پوسٹ پونمنٹ کہہ لیں, وہ G20 کی جو ڈیٹ ریلیف انیشیٹو تھا. اب آپ دیکھیں کہ ان 2019-20 جو ہمارا جو فورن لونز ری پیمنٹ تھیں وہ اباؤٹ 1.2 ٹریلین روپیز کے قریب تھیں, یو نو وٹ وی ہیڈ ٹو ری پے. اس سال obviously وہ 0 تھی بیکاز آف دا G20. تو یہ اگر خدا نخواستہ یہ وہ ایکسٹینڈ نہ کریں 1 سال اور, تو پھر تو بہت زیادہ جو آپ انریلسٹک کہہ رہے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ انریلسٹک ہوگا فار نیکسٹ ایئر. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے
अगर आपका बाहर से कर्जों का पैसा कम आता या रिलीफ कम मिलता है तो आपको अंदरूनी जो है आपको ज्यादा कर्जे लेने पड़ते हैं, उससे रुपया छापने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसका जो असर है वो अफरात-ए-ज़र पर बहुत बुरा पड़ता है। पिछले 2-3 साल से यही होता रहा है। सही सही जी, प्लीज गो अहेड। आप बता रहे थे कि जो हमारा बजट डेफिसिट है वो इस साल विल इट बी 7% बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस इट विल बी क्लोजर टू 8 अगेन। जी, हुकूमत ने जो अपने मीडियम टर्म स्ट्रेटजी पेपर छापा है और काबीना के अप्रूवल के बाद वो शाया हुआ है, जी। उसमें उन्होंने ये कहा कि 7.4% पर उसे वो कंट्रोल करेंगे, मगर इम्कानात बहुत ज्यादा ये होते हैं कि तकरीबन 1% ज्यादा होता है। तो खतरा ये कि ये 8% तक पहुंच सकता है। और टारगेट जो हुकूमत ने सेट किया था जी अपने मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटजी पेपर में वो 6% था। तो 2% एक साल गिराना गैर मुमकिन सी बात। बट वी डू ख़वातीन हज़रात ये जरूर ख्याल रखिएगा कि ये टारगेट्स जो थे ये सेट हुए थे वो जब डॉक्टर हफीज शेख थे फाइनेंस मिनिस्टर। सो आई थिंक देयर विल बी सम एडजस्टमेंट, डोंट यू थिंक डॉक्टर साहब? अ मोर रियलिस्टिक असेसमेंट बाय देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जो है वो नेगोशिएट करती है, कोई शख्स की हैसियत नहीं होती। ये एग्रीमेंट IMF और हुकूमत में है। सही है। हुकूमत ने जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर जो अप्रूव किया अपने हमारे काबीना ने वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और उसमें जो टारगेट्स दिए गए हैं वो काफी हद तक मिलते हैं, जो कि IMF के साथ मार्च में एग्रीमेंट हुआ, उस पर दस्तखत भी हुआ है। सही है। तो इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक शख्स की वजह से तब्दीली आ सकती है। So you think it's not likely with शौकत तरीन साहब, बिकॉज उन्होंने तो रिपीटेडली कहा है कि वो जो पुराना जो एग्रीमेंट हुई है there was, I mean, in effect he was saying कि empathy नहीं थी with the public of the with the public, with the industrial sector। तो देखिए, बात यह है कि इसको हमारी काबीना ने That's right, right. But डॉक्टर साहब हमारी काबीना लीगल हैसियत है और हम जब किसी इंटरनेशनल इदारा, खासतौर पे IMF जैसा बड़ा इदारा, ताकतवर इदारा, उसके साथ जब आप काम कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और होगा ये खुदा न खास्ता कि अगर आप तब्दीली बहुत ले आते हैं टारगेट्स में बजट के जो माने हुए थे, जिसके बेसिस पर आपको $500 मिलियन भी मिल चुके हैं, सही। तो होगा ये कि पोस्टपोन कर देगा IMF रिव्यू या सस्पेंड कर देगा जो 2010 में किया था। जी बिल्कुल 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 जी। So there is always obviously that danger. Okay, डॉक्टर साहब, तो ये जो मैंने कहा, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि जो G20 ने जो रिलीफ दिया था हमें इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स और रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो अगर इस साल ऐड हो गया बजट में, जो कि मैंने अभी कहीं सुना नहीं कि उन्होंने एक्सटेंड किया है, तो दैट वुड टेक अवे अ लॉट ऑफ एज यू सेड कि प्रिंटिंग पैसा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा और वो इन्फ्लेशन जो है वो फ्यूल होगी। तो क्या चीजें हैं डू यू थिंक के जिसमें एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो सकता है? नाउ एज यू नो देयर आर टू टेरिफिक आइडियाज। एक तो पेंशन रिफॉर्म्स है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो पेंशन्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए एम्प्लॉइज को भी, यू नो, सो दैट ऑफ कोर्स इज व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी बात वो एज ऑलवेज वो कहते हैं कि जो सब्सिडीज हैं उसको भी आप टारगेट कीजिएगा एंड द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ मर्जिंग ऑल द सब्सिडीज। सो दीज आर टू ब्रिलियंट आइडियाज, बट कैन दे बी इम्प्लीमेंटेड ओवरनाइट? आपके सवाल का जवाब जरा मैं खुले अंदाज में इसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। जी। सबसे बड़े 2 आइटम होते हैं हमारे फेडरल बजट में, एक है कर्जों की सूद की पेमेंट और दूसरा हमारे डिफेंस के अखराजात। डिफेंस के अखराजात में पिछले 2 साल से वाज़े तौर पर
इजाफे में बहुत कमी आई है। माशाल्लाह हमारी मिलिट्री फोर्सेस के एक्सपेंडिचर में इजाफा नहीं हुआ है, और अगले साल भी जो स्ट्रैटेजी पेपर में प्रोविजन दी गई है वो सिर्फ 3% इजाफे की है। तो हमारे जो मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट है वो हम इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है कि बजट पर कम प्रेशर हो। दूसरी तरफ जो अच्छी खबर है वो ये है कि जब आपने सूद को 13.25% से नीचे गिराया और 7% पे ले आए हैं, अगरचे आपने उससे पहले बहुत ज्यादा बॉन्ड खरीद लिए थे लॉन्ग टर्म, मगर अब 2 साल के बाद में इंशाल्लाह डेट सर्विसिंग में भी 6-7% का इजाफा होगा, जो कि कम है। पिछले 2 सालों में तो ये 15-20% से भी ज्यादा बढ़ता रहा है। तो करंट एक्सपेंडिचर साइड पर गुंजाइश बन गई है, मगर एक इसमें बहुत बड़ा आइटम है जिसका जिक्र करना जरूरी है जी, और वो ये है कि हुकूमत, फेडरल हुकूमत तो पहले ही अनाउंस कर चुकी है, और अब 2 और हुकूमतों ने कल और परसों कहा है, एक खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा पंजाब, के हम सैलरीज, तनख्वाहों में और पेंशन्स में इंशाल्लाह इजाफा करेंगे। इसलिए कि पिछला इजाफा जो हुआ था वो तकरीबन 2018-19 के बजट में हुआ था। That's right. तो अब अफराते ज़र बढ़ने की वजह से ये केस बड़ा जेन्युइन है, मगर अगर आप बढ़ाया, जिस तरह आपने कह रहे हैं कि अलाउंसेस फेडरल लेवल पे तो 50% बढ़ाने का प्रोग्राम है, पेंशन्स का अभी तक बताया नहीं है मगर उनको बढ़ाना है, और अगर हमारे जो सिपाही हैं उनकी भी मेहनत करते हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो अगर इस तरह आप देखते हैं तो आपका खर्चा जो है ये तनख्वाहों के इजाफे में और पेंशन्स के इजाफे में 5 हुकूमतें यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलाकर तकरीबन 5 से 550 अरब का बिल है। डॉक्टर साहब, we'll take a short break here. We'll come back and continue. Please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि 5 से 550 बिलियन रुपए जो हैं वो एक्स्ट्रा चाहिए होंगे जस्ट फॉर टू इंक्रीज पेंशन्स एंड सैलरीज, एंड दैट्स अ लॉट। जी जी ये तकरीबन 1% बनता है हमारी जीडीपी का अगले साल के। दूसरी तरफ जो है, जो आपने बिल्कुल मुनासिब बात की कि पेंशन्स के बारे में अब हमें स्कीम लानी है, फंड शुरू करना है, मगर इसमें गुंजाइश सिर्फ नए एम्प्लॉयज के साथ होगा। The others are grandfathered, उनको तो आप नहीं रोक सकते। That's right. नहीं कर सकते आप। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी, मगर इस वक्त आप अगर चारों प्रोविंसेस और मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट फेडरल लेवल पर मिला लें तो सालाना आपका पेंशन का बिल 1000 अरब के करीब पहुंच चुका है। 1000 अरब। That's right. And then we come to subsidies जो हैं, वो कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा, ये डॉक्टर वकार मसूद ने एक स्टडी की थी पिछले साल, सब्सिडी सेल बनाया था प्राइम मिनिस्टर ने, एंड आई थिंक दैट वाज द राइट अप्रोच। तो उन्होंने यही पूछा था उनसे कि ये सब्सिडीज जो हैं ये किस तरह मर्ज की जाएं, बिकॉज ये जो है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करेंगे तो सबको उतना ही मिलता है सब्सिडी, if you use up to 100 units, और it's not targeted, so they want to channel it through, मेरा ख्याल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अगर आप ओवरआर्चिंग जो कॉन्टेक्स्ट एहसास प्रोग्राम की है प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें वो चाह रहे हैं कि सारा मर्ज हो जाए, एंड दैट वे दे कैन ब्रिंग, मतलब ये ट्रिलियंस में, वो उन्होंने वकार मसूद साहब ने किया कि ट्रिलियंस में है सब्सिडीज विच आर नॉट टारगेटेड। तो दैट इज अनदर वे, बट अगेन दैट इज नॉट डूएबल in a year, is it? देखिए, बड़ी इज्जत के साथ मैं एक बात ड्यू रिस्पेक्ट्स कहना चाहता हूँ जी जी, कि सब्सिडी का जो बिल है वो कुछ इजाफा उसमें हुआ था कोविड के बाद पिछले साल। सही। और हुकूमत ने बहुत मुनासिब काम किए थे। आपने एहसास का जाल बहुत फैलाया था, और आपने 12,000 रुपए हर घराने को पहुंचाए थे, तकरीबन 1,70,00,000 घराना। उसको आपने अब तकरीबन कम करके 40 लाख पे महदूद कर दिया है। ये नामुनासिब है।
दूसरी तरफ जो असल मसला अब आ रहा है आपके बिजली के शोबे में कि वो सब्सिडी जिसे हम टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी कहते हैं वो तकरीबन 200 से 250 अरब होता है। मगर अब एक नई चीज आ गई है और वो ये है कि सर्कुलर डेट को कम करने के लिए और खास तौर पे जो बड़े बड़े पेंडिंग पेमेंट्स जो आपके IFPP के साथ, आपको तो पता है कि इस वक्त सर्कुलर डेट 2.4 खरब तक पहुंच चुका है और सालाना उसमें तकरीबन 500 अरब का इजाफा होता है। इसको कम करने के लिए अब हुकूमत चूंकि एक एग्रीमेंट उन्होंने किया है कुछ IPPs के साथ, तो उनकी जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे इस साल। अंदाजा ये है कि आपको बजट से 200 अरब और निकाल के सब्सिडी के तौर पर या पेमेंट के तौर पर इन IPPs को देना पड़ेगा, तो आपका बिल इसकी वजह से भी 2 गुना हो सकता है। ये apparently this is due in June, yes, before the budget they हो सकता है कि डिले करके जुलाई में कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। जी अभी तो गवर्नमेंट के सोर्सेज यही कह रहे हैं कि जून की फर्स्ट वीक में ये कर देंगे। एज यू नो IMF के साथ तो जो 6th रिव्यू है दैट्स प्रोबेबली ऑनगोइंग, बट 6th जून की डेट दी गई है, मगर आगे चल के भी और देना पड़ेगा। सही है। And then you feel that is another obviously heavy expenditure that was not budgeted. तो ये भी उसमें ही जाएगा बजट डेफिसिट में साल के। सो डॉक्टर साहब फिर कहाँ आप कह रहे हैं कि जो डिफेंस का आपने कहा कि उन्होंने भी कंटेन किया है, मगर बढ़ा तो 3% बढ़ेगा तो, एंड इन एनी केस में सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, आई डोंट सी हाउ एनी गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सटेंड के जितना वो मांग रहे हैं, जितना जरूरत है उससे द गवर्नमेंट कांट, ये जो डिफेंस और डेट सर्विसिंग वगैरह हैं इनको तो एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल, और खास तौर पे इस वक्त जो हालात हैं हमारे रीजन में, तो हमें ये देखना जरूरी है कि हम हमारे जो फोर्सेस हैं उनको जिस हद तक जरूरत पड़े उन्हें पैसा मिलना चाहिए। And with the US leaving Afghanistan, I think the pressure will be much more. डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने ये तो बता दिया कि कहाँ जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल किया है इन्होंने, उधर ही किया हुआ बिस पे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे कंट्रोल किया है, जो आपने कहा ना कि कम कर दिया है 40 मिलियन लोगों तक महदूद, 4 मिलियन, सॉरी 4 मिलियन, 40 लाख। तो where are we going? Is this, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मैं आपको चूंकि जरा कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें सुना रहा हूँ, तो मैं आपको आपकी इजाजत हो तो एक और बुरी खबर सुना दूं। अच्छी तो आपने सिर्फ रेमिटेंस की सुनाई है जी। नहीं, मैंने ये कहा ना कि बजट जो है आपके डेट सर्विसिंग का उसमें इजाफा कम हो रहा है, सूद की अदायगी में और मिलिट्री के बजट में। अब आप ये देखिए कि आपने पेट्रोलियम लेवी जो है जी, वो जब कीमतें बहुत कम थी, याद होगा आपको पिछले साल तेल की कीमत $30-35 फी बैरल पे आ गई थी, उस वक्त हुकूमत ने बड़ा चढ़ाकर उसको 30 रुपए फी लीटर कर दिया था। फिर जब कीमतें बढ़ने लगी बाहर, और अब तो वो तकरीबन $67 के करीब हैं, तो अब आप पोजीशन ये है कि आपने अपने पेट्रोलियम लेवी को, प्राइम मिनिस्टर साहब का डिसीजन ये रहा है कि जो प्राइसेस बढ़ रही हैं बाहर, वो हम अपने अवाम को अब नहीं बढ़ाएं कीमतें, उसको पास ऑन नहीं करें। सही, जो यकीनन इन अफरात ज़र वगैरह के लिहाज से बहुत मुनासिब है, मगर मसला ये है कि अब ये जो है पेट्रोलियम लेवी, ये 10 रुपए से 12 रुपए फी लीटर पे गिर चुका है। सही है। बजट में आपने रखा है फिर से अगले साल के 600 अरब। अगले साल के बजट में इतना रखा गया जी, मजबूरन, इसलिए कि IMF के साथ एग्रीमेंट तो हुआ है ना आपके, कि आप वापस 30 रुपए पे ले जाएंगे। तो
اس کے نتیجے میں آپ کا اگر آپ اس کو نہیں بڑھاتے ہیں اور آپ افراط زر کو روکنے کی وجہ سے آپ کہہ دیتے ہیں IMF سے کہ ہم نہیں بڑھاتے، تو 400 ارب کا اور شارٹ فال آپ کے بجٹ میں آ جاتا ہے. اب میں سے آگے اور کیا بتاؤں آپ کو؟ پھر اب آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی خبر سنا دیں. تو this is extremely this is especially if the prices keep on rising. جو international prices of oil ہے تو یہ تو this will be a killer for the general public, for the transport sector, for the energy sector. تو یہ تو economy as a whole. for the economy as a whole. اور جو ہمارے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے according to some sources they have agreed کہ جو 9 cents پر آور جو ہے وہ پر کلو واٹ آور جو ہے وہ الیکٹریسٹی انہوں نے اگری کر دی ہے to give to certain industries, to the industrial sector. تو یہ چیزیں تو پھر مشکل نہیں ہو جائیں گی ڈاکٹر صاحب؟ مشکل ہو جائیں گی. اور ایک اور بات میں آپ سے ذکر کر دوں. جی. ہم نے ابھی تک ٹیکس کا ٹارگٹ کے بارے میں بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت اہم ہے. صحیح. اب آپ یہ دیکھیے کہ FBR نے اگر باقی جو ہفتے کچھ رہ گئے ہیں اگر اس میں اچھی پرفارمنس دیتا ہے تو انشاءاللہ ہم 4700 ارب تک ریونیو پہنچا دیں گے، جو کہ ایک اچھی پرفارمنس ہوگی FBR کی. مگر ٹارگٹ جو سیٹ کیا ہے IMF کے ساتھ بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں جو ابھی تک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے، تقریباً 5963 5963. اب آپ سوچئے کہ کیا ایک سال میں آپ 1263 ارب روپے حاصل کر پائیں گے؟ یہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. تقریباً 25%. Not even with not even if they achieve 4.8% growth rate next year. نہیں، ایسے 25% بہت مشکل ہوتا ہے. ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ جو ہم نے کیا ہے وہ ایک سال تھا پچھلی حکومت کے 21%. دیکھیے اس میں آپ کو جو نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے وہ تقریباً 700-800 ارب. اس پہ ماشاءاللہ آپ کی حکومت نے جو اگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کی آفیشیل حیثیت ابھی تک ہے IMF کے ساتھ، کہ زیادہ تر وہ سیلز ٹیکس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. Absolutely. اور سیلز ٹیکس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جبکہ ہم پورے FBR کے ریونیوز کا 25% اضافے کا ٹارگٹ رکھا ہے تو سیلز ٹیکس میں 33% اضافہ. Dr. Saab, let's take a short break here. Let our viewers digest this extremely disturbing news. Khawatine Hazrat, stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ زیادہ فوکس سیلز ٹیکس انکریز پہ ہی ہے، اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اس کی انسیڈنس جو غریبوں پہ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت امیر لوگوں کے. جی ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو ود دس ایکسٹریملی ڈسٹربنگ انالیسس بیسڈ آن دی آفیشیل ڈاکیومنٹ. اس پہ ایک اور جو پریشانی کی بات ہے کہ ہمارے پروونشل گورنمنٹس ماشاءاللہ اچھی زندگی گزارتے رہے اس لیے کہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے بڑے پیسے ملتے رہتے ہیں INFC ایوارڈ کے تحت. اب آپ نے جا کر IMF کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کو تقریباً 35% اپنے ٹیکس ریونیوز میں اضافہ کرنا ہے اگلے سال، اور اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کر پائیں گے یا نہیں. سیلز ٹیکس ہے، سروسز پر، پھر پراپرٹی ٹیکس وغیرہ. اور اس سے بھی زیادہ ایک اور خواہش ظاہر کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیش سرپلس ماشاءاللہ ہمارے پروونسز جو ہیں اگلے سال 570 ارب کے قریب دیں گے، جبکہ اس سال مشکل سے آپ کو 240 ارب مل سکتے ہیں. ٹارگیٹس آر امپاسبل. باٹم لائن یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کس بیسس پر وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ ہماری حکومت نے ایسے چیزوں کو ایکسپٹ کیا ہے جو ناممکن نہ ہونے کے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ برابر ہونا بہت مشکل ہے.
जी डॉक्टर साहब, ये I keep on reverting back to the lack of empathy of Hafiz Sheikh. I know you are right. I know technically you are absolutely 100% right कि ये जो है ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, कैबिनेट की इंडोर्समेंट हुई है इन सब के साथ, और ये जो 2nd to the 5th रिव्यू जो फरवरी में एग्री हुआ था और मार्च में जो 500 मिलियन इनको मिल गए थे, ये सारा ये this was actually based on 2 signatures. एक सिग्नेचर जो है वो तो उनको तो फायर कर दिया गया हफीज शेख साहब को, दूसरे जो हैं हमारे गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, और जो गवर्नर साहब हैं वो अभी तक यही हैं. ये इन वन सेंस आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड. कल आपने सुना होगा कि जो डिस्काउंट रेट है उन्होंने 7% ही रखा, और दिस इज क्लोज टू द कोर इन्फ्लेशन दीज डेज. बट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने इंटरेस्ट जो डिस्काउंट रेट है इससे आधे हैं डॉक्टर साहब, एंड द रीजन इज टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी. अब आप बाज तो आप रिफाइंड 4% है जी हिंदुस्तान में 4%. एंड फॉर ठीक है उनका जो सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ कोविड इट्स अ लॉट वर्स देन आवर्स, बट द पॉइंट इज पहले से ही 4% है, फर्स्ट अटैक के बाद से ही 4%. ओके, पिछले साल से. बट मेरी जो ये गुजारिश है वो ये है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं, चाहे जितनी भी उनकी पोजीशन थी इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसने भी उनको ये ओहदा दिया है, यू नीड टू इवैल्यूएट व्हाट हैज हैपेंड, एंड आई डोंट सी एनी इवैल्यूएशन बीइंग डन. उन्होंने डॉक्टर साहब कभी मेंशन करने की कोशिश नहीं की. हमने रिपीटेडली बिजनेस रिकॉर्डर ने उनसे कहा है कि आप बताएं तो सही कि ये आपने जो 13.25% डिस्काउंट रेट था किस बेसिस पे किया था. आप कहते हैं कि आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे किया था. इस पे सारे गवर्नर्स डिसएग्रीड हैं. डॉक्टर साहब ये पूछना तो चाहिए. इस पे अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ. जी जरूर. और वो ये है कि 13.25% का उस वक्त के अफरात-ए-ज़र इस लेवल पे नहीं था. और इसकी वजह ये थी कि आप बाहर से हॉट मनी ला रहे थे, $3 अरब. That's right. और उन्होंने कहा था कि हम आपकी करेंसी गिर रही है तो हमें आप अगर अच्छा सूद का लेवल नहीं देंगे तो हम नहीं आएंगे. जिस दिन कोविड अनाउंस हुआ पाकिस्तान में उसी दिन भाग गए. मगर इसका नतीजा क्या है? स्टेट बैंक गवर्नर को जवाब देना है. That's exactly. सालाना आपके कर्जों की, मुझे बात करने दीजिए, सालाना आपके सूद की पेमेंट सालाना 600-700 अरब आपने बढ़ा दी है परमानेंटली अगले बहुत सालों के लिए. ये जो लॉन्ग टर्म कर दिया था, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म पे चले गए. 15% पे आप 16% पे आप PIBs बेच रहे थे. सही. तो देखिए ये बहुत बड़ी हिमाकत हुई है और इस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. जी. और डॉक्टर साहब एक और चीज जो उन्होंने की है जिसपे कभी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, हालांकि वो एक बंदे को वहां से लेकर आए हैं, सुना है IMF से, वो रिसर्च हेड करते हैं. इस पे भी रिसर्च उन्होंने नहीं करवाई कि क्या जो रुपी रेट है वो आजकल अंडर वैल्यूड है कि राइटली वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है. अब जब उनसे हम पूछते हैं, अगेन बिजनेस रिकॉर्ड हैज रिपीटेडली आस्क्ड देम, तो वो कहते हैं ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है. भाई अगर ये लॉन्ग नहीं देखिए मेरी बात सुनिए इस पे भी अगर आप इजाजत दें. जी. इस वक्त आपका रुपी पहली दफा थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है. ओके. आधे से 1%. तो एज ऑफ टुडे. ओके. अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आप एक तरफ तो हमें लेक्चर बहुत मिलते थे 2 साल पहले कि जी रुपए को इसलिए गिराना है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है. एक्सपोर्ट्स तो बढ़े नहीं. अब जब ये कम हो गया तो अब एक्सपोर्टर्स यकीनन कहना शुरू कर देंगे कि भाई ये बहुत नीचे गिर गया है. हालांकि ये बहुत मुनासिब हुआ है. इससे कीमतों में कुछ ठहराव पैदा हो सकता है और इसको इसी लेवल पे अगर हम कायम रखें तो मैं समझता हूं कि अफरात-ए-ज़र की कमी हो सकती है. Okay. Do you think he'll be able to manage? देखिए इस बात पे मुनस्सिर है कि इस साल जो करंट अकाउंट सरप्लस में है, अल्लाह के फजल से कल जो तय किया है कि वो करंट अकाउंट $3 अरब से नीचे उसकी डेफिसिट होगी. Which is very reasonable, डॉक्टर साहब जी. हाँ बहुत रीजनेबल है. और अगर ऐसा हुआ
تو انشاءاللہ ہمارا روپے کی ویلیو مستحکم رہے گی اور اس کے نتیجے میں بہت سے فائدے لوگوں کو ہوں گے. اوکے ایک فائنل ہمارے 1-2 منٹ رہ گئے ڈاکٹر صاحب. میں یہ آپ کے I will ask in a different way. حفیظ شیخ صاحب کو اب گئے ہوئے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور ہم جب بھی ہمارا کوئی نیا فائنانس منسٹر آتا, جب اسد عمر صاحب گئے تھے, حفیظ شیخ آئے تھے تو وی ور ویری آپٹیمسٹک. اسی طرح ایکسپیکٹیشنز جو شوکت ترین صاحب کے حوالے سے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. What do you think is the likelihood of his delivery? بس ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے کامیاب ہوں. ان میں دوسرے فائنانس منسٹروں میں فرق یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ بڑے دبنگ فائنانس منسٹر ہیں, بڑے دبنگ ہیں, اور انہوں نے آئی تھنک ہی از دی اونلی فائنانس منسٹر ہو, مطلب ہے کہ جو رینٹل پاور پروجیکٹس کا انہوں نے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا. اس وقت میرا نہیں خیال وہ جو راجہ پرویز اس میں انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ خود اس میں انوالو کر دیا. مگر میری ایک گزارش ہے, اس لیے کہ شوکت ترین جب میں وزیر تھا تو اس وقت وہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ تھے, بڑے قابل بینکر ہیں. صرف ایک گزارش ہے جی کہ دیکھیے ہر وقت کوئی اسٹیٹمنٹ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے. فائنانس منسٹر کو ذرا کم باتیں کرنا چاہیے اور جو آفیشیل پوزیشنز ہیں ان کو ایک طرح سے ریسپیکٹ کرنا چاہیے جب تک آپ کی کلیئر کٹ نیگوسیشن میں کامیابی نہ ہو. دیکھیے اس طرح کی چیزوں سے انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے, اور اب دیکھیے ساری دنیا کی نظریں اس بجٹ پہ ہے, اس لیے کہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ نہ تو کوئی ٹیکس لگے گا, نہ کوئی قیمت بڑھے گی, نہ کسی پر بوجھ پڑے گا, اور ساتھ ساتھ ٹارگیٹس دیکھیں تو 1200 ارب کا ٹیکسیشن کرنا ہے. دس از ناٹ کنسسٹنسی. تو ذرا سنبھل کے چلیں. ایک بزرگ ہوں میں, 70 سال کی عمر ہے میری, اور ایز اے پروفیسر ایمیریٹس میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سنبھل کے چلیں. اور اللہ کے فضل سے ہمارا ملک بہت عزیز ملک ہے, اس کے لیے ہم سب کی جان حاضر ہے. آگے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے. Thank you very much, Dr. Pasha. I think I can't improve on a closing like yours. Khawateen Hazrat, we hope and we wish Shaukat Tareen Saab the best. We hope کہ وہ ان کا جو بجٹ ہوگا وہ empathy show کرے گا to the people of this country, وہ growth oriented ہوگا, اور جو constraints ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا he should remain within the realistic range. اور وہ ان میں میرا خیال میں ایز اے former banker, as a former finance minister himself, Shaukat Tareen does have the capacity to be realistic in his projections, in his policies, and hopefully جو کہہ رہے ہیں کہ ہوگا with the International Monetary Fund, I hope we get that kind of a latitude, اور وہ possible ہے because of the third COVID کی جو ویو تھی وہ بہت ہی سخت تھی. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.